Are you able to see the slide? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. today we are going to start our new topic, that is kinematics of flow. Okay. So can anybody will explain what is kinematics? Sir, in kinematics, we study about motion without consider about force. Yeah, very good. In kinematics, we are going to study the velocity, acceleration, and different properties without considering the forces. Okay. And in dynamics, we will study these things also, and but with considering the forces. So first of all, we are going to study the kinematics, then after we will deal with the dynamics. So here also it is written that the kinematics is defined as that branch of science which deals with motion of particles without considering the forces causing the motion. We are don't worry about the causing the motion, which causing the motion. We are only concentrated what is the velocity at any point or at any section, what is the acceleration, and other property that we will see here. Okay. So in kinematics, we will study different types of fluid flow that we will see, and we will also study the continuity equation that we have earlier studied in your 12th class. Here there is something difference in that, but the motive is same in both the as we have previous studied about it. Here we will also study about the different types of functions like stream function, potential function. Okay. So let's start with the methods of describing fluid motion. What type of analogy that we are going to study here, that we will see in methods of describing fluid motion. एक्चुअली बेटा ये फ्लूइड मोशन क्या है कि फ्लूइड मोशन, अब फ्लूइड कैसे मोशन कर रहा है, हम क्या कैसे उसको, हमारी क्या एनालिसिस रहेगी, हम फ्लूइड का मोशन को कैसे देख रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज द हियर दैट वी आर गोइंग टू सी हाउ द फ्लूइड इज, हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द फ्लूइड मोशन. So there are two methods, one is Lagrangian method and another is Eulerian method. इन लैग्रांजियन मेथड में क्या होता है बेटा, कोई फ्लूइड का एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है ना, अब वो पार्टिकल जहाँ जहाँ जा रहा है आप उसको देखते जा रहे हो, उसको आप उसके साथ साथ चलते जा रहे हो. जैसे कि एक पार्टिकल जहाँ जा रहा है फ्लूइड जैसे जैसे उसमें कोई एक पार्टिकल ले लिया, जैसे जैसे जहाँ जाता जा रहा है आप उसके मोशन को देखते चले जा रहे हैं, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. एलेरियन में क्या है कि जनरली फ्लूइड जो है, पर्टिकुलरली हम कोई पॉइंट लेते हैं, जो फ्लूइड है उसका, जो भी फ्लूइड के सारे पार्टिकल किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास हो रहे होंगे, तो हम उस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, उस पॉइंट पे पार्टिकल का क्या मोशन रहा है, उस पार्टिकल, ये पॉइंट के थ्रू पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है. ओके. तो देर आर दीज टू मेथड, लैग्रांजियन एंड इलेरियन. जनरली इलेरियन इज मोस्टली फॉलोड इन द फ्लूइड मैकेनिक्स. इलेरियन को काफ़ी फॉलो किया जाता है. ओके. बट हियर now when we see different types of fluid flow, we will different type of observing the motion of fluid. Okay class. So now Yes, sir. we start our fluid flow. There are different types of fluid flow. One is steady and steady fluid flow, uniform and non-uniform fluid flow, laminar and turbulent flows, compressible and incompressible flow, rotational and irrotational flow, 1, 2 and 3 dimensional flow. तो हर फ्लो को बेटा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है. हर फ्लो में आप देखिएगा जो स्टेडी और यूनिफॉर्म में पर्टिकुलरली कुछ डिफरेंस है, आपको डेफिनेशन लगभग सेम सी लगेंगे दे, बट देयर इज सम डिफरेंसेज, और वो डिफरेंसेज को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा, और जो चीज़ आपको समझनी, अगर वो समझ में आ गई तो ये डेफिनेशन आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके.
अब देखिए यहाँ पे स्टेडी फ्लो के बारे में लिखा हुआ है, स्टेडी फ्लो। पहले हम स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो के बारे में बात करते हैं। स्टेडी फ्लो लिखा हुआ है that steady flow is defined as that type of flow in which the fluid characteristics like velocity, pressure, density, etc. at a point do not change with time. Generally, we can say that steady flow is that type of flow in which the fluid properties does not change with respect to time at any particular section. जो मैंने बात यहाँ पे मैंने ऐड करी एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा यहाँ पे। जैसे कि लेट सपोज कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड अगर कोई फ्लो हो रहा है, लेट सपोज कोई एक हम किसी कोई भी एक हम सिलेंड्रिकल या कोई भी टाइप आपका एक हम कोई एक बर्तन ले लें जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, या कोई भी टाइप का चैनल है जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। उस चैनल पे हम डिफरेंट सेक्शंस पे देखें। डिफरेंट सेक्शन का मतलब हमने किसी 2-3 क्रॉस सेक्शन देख ली, 2-3 क्रॉस सेक्शन पे हम उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर क्रॉस सेक्शन पे उसकी वेलोसिटी जो है, लेट सपोज दैट इज एक किसी लेट सपोज देयर आर 2 सेक्शन। सेक्शन 1 पे वेलोसिटी उस फ्लूइड की v1 है, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी v2 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हम स्टेडी फ्लो को, मैं स्टेडी फ्लो को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। स्टेडी फ्लो में हम क्या कर रहे हैं, लेट सपोज मैंने कोई चैनल लिया हुआ है, उस चैनल में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मैंने पर्टिकुलरली उस चैनल के 2 सेक्शन लिए। उस 2 सेक्शन पे लेट सपोज देयर इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। लेट सपोज द प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी है, वेलोसिटी है, या जो भी है, कोई प्रॉपर्टी मैंने यहाँ वेलोसिटी ले ली, तो लेट सपोज सेक्शन 1 पे वेलोसिटी v1 है, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी v2 है। अब स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? स्टेडी फ्लो ये कह रहा है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे वेलोसिटी जो है v1 v2 ये तो अलग अलग हो सकती हैं, बट पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर अगर आप टाइम के साथ देखेंगे तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होंगी। यानी कि अगर t इक्वल टू 0 पे सेक्शन 1 पे वेलोसिटी v1 थी, t इक्वल टू 0 पे सेक्शन 2 पे वेलोसिटी v2 थी, एट t इक्वल टू टाइम लेट सपोज 10 सेकंड बाद देखें या 1 मिनट बाद देखें आप, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे वेलोसिटी वही रहेगी, v1 रहेगी और v2 रहेगी। ये वेलोसिटी पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे या किसी सेक्शन पे चेंज नहीं होंगी, या प्रॉपर्टीज किसी पॉइंट या सेक्शन पे चेंज नहीं होंगी। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, यानी कि फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी पॉइंट और एनी सेक्शन। एम आई क्लियर बेटा? सर यस सर। हाँ बताओ, कोई पूछ रहा था। Sir, in a steady flow, sir, we know about in a steady flow property may change with point, other point to one point. But sir, we will take section, there will a lot of point, then property will different in lot of point in your section. नहीं, there may be different point at any section, cross section, but you can take any point also, but I am assuming here is that cross section is very small. Okay, I am taking a section, Okay, very sir. small section, okay, and I am assuming that at all points the velocity is same at that section. Okay, if you are considering the point, you can also take it at a point also. Okay, but there are different types of study, हम different type की study करते हैं। एक्चुअली क्या है, जब डेंसिटी सिस्टम की लेस हो तो वहाँ पे हम क्या पॉइंट स्टडी करेंगे। अगर डेंसिटी सिस्टम की ज़्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सेक्शन लेते हैं फिर थोड़ा सा। ओके ओके सर। तो मेरा जो बताने का जो मकसद था वो क्लियर हुआ? यस सर। ओके गुड। नाउ वी विल सी। तो इफ देयर स्टेडी फ्लो है, अगर अब वो स्टेडी अगर नहीं है तो फिर कौन सा फ्लो होगा? वो अनस्टेडी फ्लो होगा, ठीक है ना? तो स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो तो आपको क्लियर हो गए। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज देखते हैं। देखिए यूनिफॉर्म फ्लोज और नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज जो है, दैट इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस।
यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और केवल यहाँ पे हम केवल वेलोसिटी की बात करेंगे। ओके, तो लेट्स सपोज एक बार डेफिनेशन में आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी द डेफिनेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप स्टडी फ्लो का देख सकते हैं, दैट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी पॉइंट इज नॉट चेंजिंग, तो इट इज जीरो, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग एट एनी पॉइंट, तो ये इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। अनस्टेडी है तो ये जीरो नहीं होगा, तो दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। नाउ दिस इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सी इज uniform flow is defined as that type of flow in which the velocity at any given time does not change with respect to space। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। लेट्स सपोज मैंने बात करी भी फ्लूइड फ्लो की बात करी थी, ठीक है, और चैनल लिया था हमने, किसी चैनल में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वहां पे हमने दो सेक्शन लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि लेट सपोज t इक्वल टू किसी टाइम पे या t इक्वल टू 0 पे आप फ्लूइड का फ्लो देख रहे हैं और आपने दो सेक्शन लिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे क्या होगा कि वेलोसिटी दोनों सेक्शन पे सेम होगी, यानी कि अगर सेक्शन पे 1 पे वेलोसिटी v1 है, अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो सेक्शन 2 पे भी वेलोसिटी v1 होगी, पर्टिकुलरली किसी टाइम पे, यानी कि t इक्वल टू 0। t इक्वल टू समथिंग, लेट सपोज t इक्वल टू मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, t इक्वल टू t पे देख रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर टाइम पे देख रहा हूँ, तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी अगर किसी सेक्शन पे देखेंगे तो सेम रहेगी। यानी कि लेट सपोज इस समय वेलोसिटी v1 है, t इक्वल टू कुछ समय बाद वेलोसिटी v2 हो गई, तो आप दोनों सेक्शन पे देखेंगे तो वेलोसिटी v2 ही रहेगी। वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज इसमें नहीं होगी, विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी, बट विद रेस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होगी यूनिफॉर्म फ्लो में। इज दैट क्लियर जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं क्लास? यस, क्या सभी को क्लियर है? मतलब सब टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी जो थी वही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस जो मतलब स्पेस जो होगा वो लेंथ नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होगी बेटा। इसमें लेट सपोज t इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी है, t इक्वल टू t पे वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई, लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। यानी कि चैनल अगर आपका की लंबाई अगर l है तो किसी भी लेंथ में देख, किसी भी पॉइंट पे देखोगे आप, हर पॉइंट पे पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो सेम चलेगी। हाँ, वो सेम रहेगी, पूरी डिस्टेंस पूरी लेंथ में सेम रहेगी पर्टिकुलर किसी टाइम पे। जबकि स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा था कि किसी भी टाइम पे टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, जबकि डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज थी। लेकिन आप टाइम चेंज करोगे तो वहाँ वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी जो थी वही बनी रहेगी। यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलरली टाइम पे वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है, लेकिन जैसे ही टाइम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी वही रहेगी। यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सभी को क्लियर है ये? यस सर। ओके। तो जो मैंने डिस्क्राइब किया, अगर ऐसा फ्लो है तो यूनिफॉर्म फ्लो है, और अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो मैथमेटिकली कैन बी रिटन है डेल्टा v बाई डेल्टा एस एट पर्टिकुलरली टाइम t पे हमने कांस्टेंट लिया है, तो डेट इज 0। तो दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो आपके स्टेडी फ्लो है, अनस्टेडी फ्लो हो गए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गए। नाउ वी सी द नेक्स्ट पार्ट, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, लैमिनार फ्लो, व्हाट इज दिस लैमिनार फ्लो? लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में बस आपको इतना ध्यान रखना, लैमिनार फ्लो जो है इसमें क्या है कि जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, जो उनका जो मोशन होगा, ये पर्टिकुलरली किसी एक मैनर में फ्लो करेंगे। पर्टिकुलरली एक मतलब इनका एक मैनर होगा जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसका हाँ ये पाथ है।
लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में आप पर्टिकुलरली किसी भी उसका जो है पाथ आप नहीं बता सकते पार्टिकल्स का कि इसका पाथ क्या है. इट्स वेरी टिपिकल टू डिस्क्राइब द पाथ ऑफ पार्टिकल इन टर्बुलेंट फ्लो. तो इन लैमिनार फ्लो in which the fluid particles move along a well defined path. ओके, एक वेल डिफाइंड पाथ के अलॉन्ग मूव करेंगे. और जनरली कहते हैं कि लेयर के फॉर्म में मूव कर रहे हैं. एक लेयर ऊपर चल रही है, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, एक पर्टिकुलरली एक रिलेटेड फैशन में मैनर कर रहा है, एक पर्टिकुलरली एक मैनर में फ्लो कर रहा है. बट इन टर्बुलेंट फ्लो देयर इज नो एनी पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड फॉर पार्टिकल्स इन टर्बुलेंट फ्लो. एक जिगजैग मोशन में करेंगे. जिगजैग का मतलब कोई भी आड़ा तिरछा किसी टाइप का एक मोशन का एक पार्टिकल ऐसा मूव करेंगे. आप वहाँ पे पार्टिकल का पाथ डिस्क्राइब करना बड़ा ही टिपिकल है टर्बुलेंट फ्लो. So here you can also see the definition. The laminar flow is defined as the type of flow in which the fluid particles move along well-defined paths or streamline, and all the streamlines are straight and parallel. Thus the particles move in laminar or laminas are layers gliding smoothly over the adjacent layer. This type of flow is also called streamline flow or viscous flow. Now other is the turbulent flow. Turbulent flow is that type of flow in which the fluid particles move in a zigzag way. Due to the movement of fluid particles in a zigzag way, the eddies formation takes place which are responsible for high energy loss. Okay, तो अभी तो हम बाद में बात करेंगे कि ये जिगजैग जो मोशन है उसकी वजह से क्या लॉसेज हैं. जब टर्बुलेंट फ्लो का चैप्टर जब आएगा तब देखेंगे. अभी तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैमिनार और टर्बुलेंट में क्या डिफरेंस है, जैसा मैंने बताया. बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस सर. सभी को लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्लियर है? यस सर. ओके. नाउ यहाँ पे ये दिया हुआ है थोड़ा सा रेनॉल्ड नंबर के बारे में. हालांकि इसको मैं डायनेमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ कि लेट्स सपोज कोई फ्लो हो रहा है. अब आपको फाइंड आउट करना है कि लैमिनार है कि टर्बुलेंट है ना. तो लैमिनार है कि अगर टर्बुलेंट है. फ्लो जनरली हम दो चीज़ों पे देखते हैं, एक तो किसी प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है या किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पे जो दे रखा है ये पाइप फ्लो है. किसी पाइप के अंदर अगर फ्लो हो रहा है तो हम देखते हैं एक रेनॉल्ड नंबर, एक फार्मूला होता है रो वी डी बाई म्यू. यहाँ पे वी डी बाई न्यू लिखा हुआ है. न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी. अगर इसको डायनेमिक विस्कोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो ये रो वी डी बाई म्यू हो जाएगा. ये इसके बारे में और थोड़ा अभी हम रेनॉल्ड नंबर जब मैं डायनेमिक्स में बताऊंगा तो वहाँ पे और थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा. अभी ध्यान रखिए कि ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू जब पुट करते हैं, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से लेस आ रही है देन टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो. और अगर किसमें केवल पाइप फ्लो की बात कर रहा हूँ, अगर किसी प्लेट में फ्लो हो रहा है, ठीक है, या किसी सरफेस पे फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. हम पाइप फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं जस्ट. अगर पाइप फ्लो में रेनॉल्ड वैल्यू की अगर वैल्यू 2000 से कम आ रही है देन दैट टाइप ऑफ फ्लो विल बी कॉल्ड लैमिनार. और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू मोर देन 4000 है देन दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट. अगर 2000 से 4000 के बीच में तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड मिक्स फ्लो, ठीक है ना, या इंटरमिटेंट फ्लो. उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. ये चेंज ऑफ फ्लो कहा जाता है कि एक फ्लो से दूसरे फ्लो में चेंज हो रहा है वहाँ पे डेट अगर 2000 से 4000 के बीच में. ओके यस सर. ठीक है बेटा. तो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बात हो गई. नाउ वी टॉक अबाउट द कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो. इसके बारे में हालांकि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ. कोई बताएगा क्या है कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल? मैंने बताया है आप लोगों को, भूल गए हो बात अलग है. सर हाँ बताओ. कंप्रेसिबल फ्लो में सर वो एक दूसरे में सर कंप्रेस हो जाता है. इनकम्प्रेसिबल में फोर्स लगा. नहीं बताया बेटा मैंने. इसके एक मैंने इक्वेशन भी निकाली थी. सर इनकम्प्रेसिबल में सर चेंज इन वॉल्यूम 0 रहता है. कुछ हद तक सही हो, थोड़ा सा डिफरेंट. हाँ ठीक है, तुम कुछ हद तक सही बता रहे हो, लेकिन डेंसिटी भी 0 होती है. हाँ ठीक है, अब तुमने सही वर्ड यूज किया.
ये मैंने एक्चुअली बताया था, आपको ध्यान नहीं है। मैंने बल्क मॉडुलस जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में, फ्लूइड प्रॉपर्टी जब मैंने चैप्टर पहला पढ़ाया था, तो वहाँ पे बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस और ये बल्क बताया था, तो वहीं पे मैंने इसको बताया था। हाँ बेटा, हेलो, आवाज़ नहीं आ सर रही यही बताया था सर। सर डेंसिटी जीरो होती है और सर हाँ, यही वॉल्यूम भी बताया जीरो था, होता वहीं है। पे मैंने फॉर्मूला प्रूफ करके बताया था, वहाँ पे आ रहा था ये। कंप्रेसिबिलिटी बताई थी एक्चुअली। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला आपको अगर ध्यान हो तो आ रहा था रो डी रो बाई डी पी, रो डी रो बाई बी टी। रो वहाँ पे डेंसिटी थी और डीपी था प्रेशर, और डी रो आ रहा था। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला आ रहा था रो डी रो सर बाई। रो नहीं था सर। हाँ, सर वन अपॉन रो था सर। वो तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी थी बेटा, वो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी सर थी। हाँ, सर वन अपॉन रो डी रो बाई डी पी था सर। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, 1/रो डी रो बाई डी पी। ठीक है ठीक है, मैं रो डी रो बाई डी पी कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, 1/रो डी रो बाई डी पी था। ओके ओके, थैंक्स। तो ये जो फार्मूला आया था कंप्रेसिबिलिटी का, 1/रो डी रो बाई डी पी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डी रो अगर जीरो है तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगी। डी रो बाई जीरो होने का क्या मतलब, यानी कि चेंज इन डेंसिटी इज जीरो। डी रो का मतलब क्या है, चेंज इन डेंसिटी, और डी रो अगर जीरो है इसका मतलब चेंज इन डेंसिटी जीरो, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट है। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, यानी दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। अगर डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है देन दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इसी तरह फ्लो में भी कहा जाता है, इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट अलोंग द फ्लो then that type of flow is called incompressible flow. If density is not constant, then that type of flow is called compressible flow. Am I clear to everybody, class? Yes sir. यस सर। Okay, good. So now these type of flow which I have talked about: steady and unsteady flow, uniform and non-uniform flow, laminar flow and turbulent flow, compressible flow and incompressible flow. इसमें यहाँ तक अभी कोई दिक्कत है किसी को? क्लास? No sir. Okay. नहीं सर। नो सर। Okay. Now another flow is rotational flow and irrotational flow. चलो, रोटेशनल और इरोटेशनल के बारे में कोई बताएगा कुछ? कोई बता सकता है क्या होगा रोटेशनल और क्या होगा इरोटेशनल? क्या लगता है रोटेशनल क्या होना चाहिए और इरोटेशनल क्या होना चाहिए? रोटेशनल का मतलब क्या है? Sir, sir, हाँ sir, rotational means sir during flow fluid should rotate about their axis. बिल्कुल सही। देखो इसने इन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। जैसे टायर का मूवमेंट आपने देखा है, टायर कैसा हो रहा है, लीनियर भी करता है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है ना? तो सेम टाइप का रोटेशनल फ्लो का मतलब बेटा यही है कि वो लीनियर मूवमेंट कर रहा है और अपनी एक्साइज के अबाउट घूम भी रहा है, वो घूमता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो, है ना? और इरोटेशनल में क्या होगा कि वो अपनी एक्सिस पे नहीं घूमेगा, जस्ट लाइक है जैसे कार जा रही है सीधे सीधे अपने पॉइंट से, अपने बिल्कुल सीधे सीधे मूव कर रही है। तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। मतलब सर एक तरीके से वो पार्टिकल्स वो स्लाइड करते हुए जाएंगे, मतलब वो रोटेशन नहीं होगा, स्लाइड करते हुए सीधे सीधे, स्लाइड सीधे सीधे एक सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन जा रहा है। और जो रोटेशनल का मतलब जैसे टायर का मूवमेंट है, घूमता हुआ जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, रोटेशनल भी कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो ट्रांसलेशनल तो हो रहा है बट अपनी एक्सिस पे मूव भी कर रहा है वो। तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो। ओके, तो रोटेशनल फ्लो के लिए और इरोटेशनल फ्लो ये कब होगा, क्या मेन कॉज हो सकता है रोटेशनल फ्लो होने का? सर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह वर्क करनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये है जैसे कि लेट सपोज अगर वो रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब कोई टेंजेंशियल फोर्स ऊपर लग रहा होगा जो उसको
मूव करा रहा है, जो उसको रोटेट करा रहा है। 100% है, तभी तो होगा। जैसे पार्टिकल अगर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो कैसे रोटेट करेगा, यानी इसके ऊपर अगर सरफेस पे कोई आप टेंजेंशियल फोर्स लगाई, जैसे कि आप एक सुई का धागा, वो है सुई, क्या कहते हैं, कोई एक कहना चाहिए, जैसे आप अनबाउंड करें किसी धागे को, कोई लटाई, कोई जो चरखी होती है ना, इसमें धागा लपेटा हुआ होता है, ठीक है ना, तो उसमें जैसे वो है, अगर उसको आप चरखी को रोटेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, धागा आप खींचते हो तभी चरखी रोटेट होती है कि नहीं होती है? यस यानी कि एक फोर्स लगा रहे हो आप, और कैसा टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, और चरखी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। सेम उसी तरीके से इमेजिन करिए कि पार्टिकल है, वो मूव तो कर रहा है लेकिन अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब कोई टेंजेंशियल फोर्स पे लग रहा है तभी वो रोटेट हो रहा है। यस सर, है ना, तो वो रोटेट, जो टेंजेंशियल जो फोर्स है, इसको बोलते हैं यहाँ पे विस्कस फोर्स। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, विस्कोसिटी और ये सब चीजों के बारे में। यानी कि अगर वो रोटेशनल फ्लो है तो इसका मतलब वो विस्कस फ्लो है, इसको हम विस्कस फ्लो भी बोलते हैं, है ना। रोटेशनल फ्लो अगर है तो विस्कस फ्लो है, और इररोटेशनल फ्लो का मतलब है नॉन विस्कस फ्लो, इसको हम आइडियल फ्लो बोलते हैं, जहाँ पे विस्कोसिटी को हम 0 मानते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि विस्कोसिटी कुछ ना कुछ तो होती ही होती है। एम आई क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। सर हाँ सर हाँ, बताओ बताओ। सर इसमें डेफिनेशन में सर एक लाइन लिखी है सर, स्ट्रीम लाइन, सर ये क्या होता है? हाँ बेटा, ये भी आएगा धीरे धीरे, मैं बताऊंगा। अभी स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब आप ये मान के चलिए कि लैमिनार फ्लो है उसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रीम लाइन क्या है अब ये बताऊंगा मैं। स्ट्रीम लाइन एक्चुअली, चलो यही बता देता हूँ, स्ट्रीम लाइन कुछ नहीं है। स्ट्रीम लाइन जनरली क्या है कि अगर फ्लूइड पर्टिकुलरली कोई पाथ फॉलो कर रहा है, फ्लूइड अगर पर्टिकुलरली कोई पाथ फॉलो कर रहा है, तो हम उसमें कोई भी पार्टिकल ले लें, तो कोई भी पार्टिकल होगा तो उसका पर्टिकुलरली एक पाथ होगा, तो उस पर्टिकुलरली पाथ को अगर हम ट्रेस करें, यानी कि पॉइंट, हर पॉइंट को हम ट्रेस करें, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट उस पर उसके लोकेट करें, और उन पॉइंट को हम मिलाएं, तो पर्टिकुलरली एक लाइन आएगी कि नहीं आएगी, जो शो करेगी कि उस पार्टिकल का मूवमेंट कैसा था। दैट लाइन इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। और जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब उसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है ना। कभी भी दो पार्टिकल, अगर लैमिनार फ्लो है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो, कभी भी दो पार्टिकल अब एक दूसरे के पाथ को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि वो हर पार्टिकल का पर्टिकुलरली वही फ्लो है, हर वही वही उसी पाथ के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब बेटा ये होता है कि जो लैमिनार फ्लो में जो हम पर्टिकुलरली किसी पार्टिकल का पाथ का जो मूवमेंट है, या किसी पर्टिकुलरली पार्टिकल का जो पाथ है, दैट पाथ इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन, एंड दैट फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। कुछ बात समझ में आई बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। नहीं, स्ट्रीम लाइन का मतलब ये हुआ लैमिनार फ्लो की तरह कि मतलब हर पर्टिकुलरली किसी पाथ के अलोंग वो फ्लो कर रहा है, उसका हर पार्टिकल का एक पाथ है, और हर पार्टिकल का कैसा पाथ है, वो स्ट्रीम लाइन के अलोंग है, ठीक है ना। जैसे कि आप इसको, मैं आप बहुत ही इसमें से इसको ऐसे समझाया जाए, जैसे कि लेट सपोज आप किसी एक बड़े बर्तन में और पानी को डाल रहे हैं, मग्गे से, आप मग से किसी बड़े या बाल्टी में पानी को डाल रहे हैं, आप बहुत ही धीरे धीरे डालिए। जब बहुत ही धीरे धीरे डालेंगे तो क्या होगा, एक लेयर के फॉर्म में नीचे जा रहा होगा, वो एक लेयर के फॉर्म में नीचे जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे किसी भी पार्टिकल का आप देखें तो हर पार्टिकल का पर्टिकुलरली एक ही पाथ है, वो हर पार्टिकल एक पाथ फॉलो कर रहा होगा, पर्टिकुलरली सिंगल एक पाथ, ठीक है ना। तो इसी को आप लैमिनार फ्लो कह लीजिए, या उस पाथ की जो लाइन, उस पाथ हो, उस पाथ को अगर आप एक लाइन से बनाएं, ठीक है, तो उसको स्ट्रीम लाइन बोलेंगे, या इसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कह सकते हैं। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। तो ये जस्ट ये रोटेशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल व्हाइल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइंस आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। यानी किसी पर्टिकुलरली पाथ को जब फॉलो कर रहे हैं तो उस पाथ पे जा तो रहे हैं, लेकिन अपने एक्सिस के अलाउंग भी रोटेट करते हुए जा रहे हैं। इतनी सी बात है।
ठीक है। And if the fluid particle while flowing along a streamline do not rotate about their own axis, then that type of flow is called rotational flow. Okay, एक्चुअली क्या है, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है ये लैमिनार फ्लो में बात होती है, तो रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो को आप लैमिनार फ्लो में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में आप, क्योंकि उनका पाथ ही नहीं पता है, उनका पार्टिकल का मोशन ही नहीं पता चलता है, तो वहाँ पे रोटेशनल फ्लो के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लैमिनार ना लिख के अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन या स्ट्रीम लाइन फ्लो को उस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो, नाउ अनदर इज द 1, 2 and 3 डायमेंशनल फ्लोज। ये तो इजी सी चीज है, 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो, 3 डायमेंशनल, यानी कि यदि पर्टिकुलरली जो फ्लो है अगर 1 डायमेंशनल फ्लो है तो दैट इज 1 डायमेंशनल का मतलब पर्टिकुलरली सी एक एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो रहा है, या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, तो दैट इज 1। 2 डायमेंशनल का मतलब अगर वो किसी 2D में फ्लो हो रहा है, दैट 2 at 3, अगर स्पेस में फ्लो हो रहा है तो 3 डायमेंशनल फ्लो। इसके बारे में हम अब और बाद में डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे आएगा 1, 2 and 3 डायमेंशनल फ्लो। लेकिन अभी आपको मोटा मोटा आइडिया तो है कि 1 डायमेंशनल का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली किसी एक डायमेंशन में फ्लो हो रहा है, या तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, या जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। 2 डायमेंशन का मतलब किसी 2D में फ्लो हो रहा है, यानी कि एक्स वाई प्लेन में फ्लो हो रहा है, और 3D का मतलब किसी प्लेस में फ्लो हो रहा है ना? ओके बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो नाउ अब ये कुछ टर्म्स हैं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। ये इन पे कई बार न्यूमेरिकल आते हैं और जो है लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डिस्चार्ज, व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो। ओके, तो इन टर्म्स को देखते हैं, और ये जो फार्मूला है डिस्चार्ज का या रेट ऑफ फ्लो का, या जनरली इसको फ्लो रेट भी बोलते हैं, कहीं पे वॉल्यूम फ्लो रेट लिखा जाता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज, सारी चीज़ें एक ही है। और इसका फार्मूला जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसको भी मैं बताता हूँ क्या है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये फार्मूला। ओके, सो what is rate of flow or discharge? Rate of flow or discharge is nothing, it is the volume of fluid passing through per second, it is the volume of fluid passing through per second at any section, it is called flow rate या rate of flow or discharge, या जनरली इसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट हमने लगा दिया तो वहाँ टाइम की बात आ गई, यानी कि how much volume is coming out per second at particular section. Okay, so this is the rate of flow or discharge। इसका जो फॉर्मूला है that is area into velocity है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Q बराबर, इसको हम जनरली Q से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करेंगे, उसका फार्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है, वी ऑलवेज टेक वेलोसिटी हियर एवरेज वेलोसिटी। जब डायनेमिक्स आएगी तो मैं बात करूंगा डिफरेंट वेलोसिटी में, वहाँ पे एक एवरेज वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला भी प्रूफ करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लिख रहे हैं डिस्चार्ज में, जो फार्मूले में आता है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये अभी आप इतना ध्यान रखिए। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है ये जब डायनेमिक्स आएगी तो वहाँ पे और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा। ओके, इट्स यूनिट इज, डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होगी, या फिर जनरली अगर मास फ्लो रेट भी लिखते हैं तो केजी पर सेकेंड के फॉर्म में लिखते हैं, केजीएफ पर सेकेंड या कर। ओके क्लास? यस सर। ओके, तो नाउ डिस्चार्ज इज व्हाट? डिस्चार्ज यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ सेक्शन ऑफ ए पाइप और ए चैनल। ओके, for an incompressible fluid the rate of flow or discharge is expressed as the volume of fluid flowing across the section per second. For compressible fluid the rate of flow is usually expressed as the weight of fluid flowing across the section. So what is the unit of this? This is meter cube per second or liter per second. Okay, या अगर वेट के फॉर्म में लिखेंगे तो kgf per second और न्यूटन पर सेकेंड। तो फॉर्मूला इज Q बराबर A इंटू V।
where v is the average velocity. ओके क्लास, यहाँ तक क्लियर है आपको? सर बट कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए तो थोड़ा चेंज होगा। कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए बेटा कुछ नहीं, हमने क्या कंप्रेसिबल लेक्चर है तो वहाँ पे हम वेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है, बस इतनी सी बात है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो क्योंकि वहाँ डेंसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ पे हम वॉल्यूम फ्लो रेट निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी अगर चेंज होगी तो फिर हम मास में आ जाते हैं, फिर तो वेट वाली बात करने लगते हैं, और कोई इसमें फर्क नहीं। ये सर वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा सर। वेट कांस्टेंट ही रहेगा। अगर वहाँ पे रो कांस्टेंट हो गया तो आपका जो फॉर्मूला में आप रखिए तो अगर चाहे तो अगर वेट पर सेकंड निकालो इनकम्प्रेसिबल फ्लो, बात वही रह जाएगी क्योंकि वहाँ रो कांस्टेंट है। इनकम्प्रेसिबल में क्या रो कांस्टेंट नहीं है। यस, बात समझ में आई बेटा? गोलू कुमार? ओके सर, ओके सर। ओके, सो नाउ another important question, continuity equation. आप लोगों ने क्वांटिटी इक्वेशन पढ़ी होगी, बताइए जरा, कोई बता सकता है व्हाट इज क्वांटिटी इक्वेशन? क्लास कोई बता सकता है क्वांटिटी इक्वेशन के बारे में? सर क्वांटिटी इक्वेशन, सर इट मींस सर फ्लो एट इनलेट इज इक्वल टू फ्लो एट आउटलेट। नहीं, इक्वेशन क्या थी, ध्यान है किसी को? सर थर्मो में जो पढ़े थे सर। थर्मो में नहीं पढ़े बेटा, आप लोग 12th में भी पढ़े होगे, आया होगा क्वांटिटी इक्वेशन, नहीं पढ़े? सर रो A1 बराबर रो A2। रो A1 बराबर नहीं, A1 B1 बराबर A2 B2 कई बार यूज किया होगा आप लोगों ने। यस यस। एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, A1 B1 बराबर A2 B2, क्वांटिटी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। चलो यहाँ पे अब इस क्वांटिटी इक्वेशन को एक्सप्लोर करते हैं कि है क्या एक्चुअली। अभी आपने फार्मूला पढ़ा होगा और इसका यूज भी किया होगा, अब यहाँ पे आप देखोगे इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना, ठीक है ना? एज ए इंजीनियर हाउ विल यू अप्लाई दिस इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेटा क्या है? इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज नथिंग, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास एट एनी पॉइंट। यानी कि मास फ्लो रेट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे होगा मास फ्लो रेट है वो तो सेम रहेगा। मास फ्लो रेट क्या चेंज होगा? आप बताइए, मास फ्लो रेट चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा, है ना? नो सर। तो मास फ्लो रेट जो है डेट विल बी कांस्टेंट। अभी हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? ये क्वांटिटी इक्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं अभी, हम यहाँ पे जो प्रूफ करेंगे अभी ये वन डायमेंशनल के लिए, ठीक है? फिर इसके बाद 3 डायमेंशनल के लिए क्या होता है वो भी देखेंगे। तो अभी 1 डायमेंशनल के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 डायमेंशनल में अगर हम देखें तो अगर हम करें कि मास फ्लो रेट अगर कांस्टेंट करें तो देखिए इक्वेशन निकल के आती है। मास फ्लो रेट क्या हो गया बेटा? मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू, यस सर, वो सर रो ए भी फॉर्मूला आता है सर, थर्मो में पढ़े थे, आता है। m डॉट इक्वल टू। कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ कैसे आ रहा है वो। देखिए बेटा, मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता है? यस सर। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम डिफरेंट फॉर्म में? एरिया इनटू लेंथ भी लिख सकते हैं। यस सर। तो है ना? अब मास फ्लो रेट की बात करें तो मास तो हो गया एरिया इंटू लेंथ इंटू सॉरी, मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये तो मास हो गया। अगर हम फ्लो रेट की बात करें, मास फ्लो रेट, जैसे ही रेट वर्ड आता है इसका मतलब हम टाइम की बात करने लगते हैं। तो मास फ्लो रेट का मतलब हो गया मास अपॉन टाइम। तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? सर वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट लिख क्या हो गया? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके ओके, यस सर। अब हम क्या करें, अब 2 सेक्शन ले लें, एक सेक्शन 1 ले लें, एक सेक्शन 2 ले लें। लेट्स सपोज सेक्शन 1 का जो एरिया A1 है, सेक्शन 2 का एरिया A2 है। सेक्शन 1 पे वेलोसिटी V1 है, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी V2 है। सेक्शन 1 पे डेंसिटी ρ1 है, सेक्शन 2 पे डेंसिटी ρ2 है।
तो अगर मैं मास कंजर्वेशन फार्मूला लगाऊं तो क्या होगा, ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। होगा कि नहीं यस होगा? सर। तो ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो क्या होगा, ρ1 इक्वल टू ρ2 कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ρ1 डेंसिटी विल नॉट चेंज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, तो दैट विल बी कैंसल्ड आउट एंड तब क्या बचेगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 जो आप जनरली यूज करते हुए आ रहे हो। देखिए इसमें नीचे होगा, ये देखिए दो सेक्शन लिए हुए हैं, ये वन सेक्शन, सेक्शन 1 पे देखिए है मास फ्लो रेट ρ1 A1 V1, सेक्शन 2 पे ρ2 A2 V2 और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेक्शन 1 पे ρ1 A1 V1 ρ2 A2 V2। अगर ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ये आप लगाते हैं। लेकिन ये हमने जो बात करी भी कि हमें बात करी है वन डायमेंशनल मोशन के लिए, वन डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो के लिए बात करी है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, इसका यूज कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 में जो ये V1 और V2 है, यहाँ भी V1 और V2 जो है डेट आर द एवरेज वेलोसिटी, डेट आर द एवरेज वेलोसिटीज। ओके, सेकेंड पॉइंट, जैसे कि अब 1 और 2 हैं, है ना, लेट सपोज क्या है कि अब A1 V1 A2 V2 का मतलब ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यही तो हुआ। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ सर। यस मेरी सर। आवाज सर। चली गई थी ना बीच में, Yes, sir. पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कभी बीच में प्रॉब्लम करने Yes, लगा sir. है ये। चलो वो दिख रहा है तुमको कि नहीं दिख रहा है? स्लाइड दिख ये रही तो है क्या? यस सर दिख रहा है। स्लाइड दिख रही है। स्लाइड दिख रही है। तो मैं आप बात कर रहा था क्वांटिटी इक्वेशन की, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट पर्टिकुलरली एट एनी सेक्शन। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है। देखिए ये दो सेक्शन हैं 1 और 2, ठीक है ना, यहाँ पे अगर एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर जहाँ आप बता सकते हैं वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? क्लास सर जहाँ पे एरिया कम होगा सर। वेरी गुड, एरिया कम होगा जहाँ सर, जहाँ। एरिया कम पहले होगा point पे वेलोसिटी सर। वहाँ पे ज़्यादा होगी। और इसको आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हो बेटा, इसको प्रैक्टिकली ऐसे देख सकते हो कि जैसे ही आप जो है कोई पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, आप जो पाइप से पानी जल्दी जो आपके पास जो पाइप होता है पानी वाला, आप पानी का आगे जैसे ही थोड़ा सा मुंह दबाते हो तो क्या होता है, उसकी जो है धार लंबी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? वेलोसिटी Yes, बढ़ sir. जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? यस सर। है ना? तो आप Yes, देख sir. सकते हो कि एरिया इंटू वेलोसिटी, बिकॉज एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरिया आपने कम किया तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी बढ़ जाती है। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल फिनोमेना ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, एरिया इंटू वेलोसिटी। और ये आपको जब आप जो करेंगे, अभी आप डिफरेंट टाइप के डायनेमिक्स हो चाहे कहीं पे भी हो, अभी जब आप प्रैक्टिकल भी करेंगे तो वही कई जगह आपको यूज करने को मिलेगा, या जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने में, एरिया फाइंड आउट करने में, कई चीज़ों में फाइंड आउट करने में। ओके क्लास? यस सर। ओके, यस सर। आर यू एबल टू सी दिस न्यूमेरिकल? या न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। न्यूमेरिकल लिखा हुआ था, डायमीटर्स ऑफ ए पाइप एट सेक्शन 1 and 2 आर 10 cm and 15 cm respectively,
Now you have to find out the discharge through the pipe if the velocity of water flowing through the pipe section at 1 is 5 meter per second. Determine the velocity at section 2. तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो वेलोसिटी पूछी गई है, दूसरा डिस्चार्ज पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वांटिटी इक्वेशन का यूज़ करना है और डिस्चार्ज वाला फार्मूला यूज़ करना और ये सब निकालना है। इट्स वेरी वेरी इजी। मैं क्योंकि टाइम कम है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, खुद ही यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए एक पाइप है, इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का डाया दे रखा है। सेक्शन 1 पे आपको वेलोसिटी भी दे रखी है, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज। ओके, तो सेक्शन 2 पे वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वांटिटी इक्वेशन से a1 v1 इक्वल टू a2 v2। और a1 क्या होगा? डाया दे रखा है, सर्कुलर पाइप है तो इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, तो एरिया क्या होगा? π/4 d स्क्वायर। तो π/4 d1 स्क्वायर यहाँ का एरिया हो गया, π/4 d2 स्क्वायर यहाँ का एरिया होगा। तो a1 और a2 पता है, v1 पता है, v2 निकल जाएगा, तो निकल गया। नाउ डिस्चार्ज इज व्हाट? एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज क्या है? दैट इज आल्सो अ वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना? तो वो भी क्या है कि दैट इज आल्सो कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। तो आप चाहे सेक्शन 1 पे निकाल लीजिए, चाहे सेक्शन 2 पे एरिया इंटू वेलोसिटी निकाल लीजिए, आपको केवल एरिया इंटू वेलोसिटी निकालना है। दैट विल बी कांस्टेंट एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। डिस्चार्ज का फार्मूला a1 v1 निकालें, चाहे a2 v2 निकालें, किसी से भी आपको ये फार्मूला लगाना है और डिस्चार्ज आपका निकल आएगा। तो इतना ये छोटा सा न्यूमेरिकल था जो आपकी समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। न्यूमेरिकल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, good. So okay class, today we finish the class here. थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। okay बेटा, नमस्ते thanks sir. for today, thanks for today. Okay. थैंक यू सर।